مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو اور بارگاہ مسیح میں آپ سبوں کا خیر مقدم۔ آئیے آج ہم سیکھیں کہ خدا پاک روح آج بہت دفعہ سیمی آپ سے بات کرتا ہے اور اکثر یہی کہتے ہیں کہ مرنا کتنے ہے، ہاں کہتے ہیں مرنا کتنے ہے، پھر تو اس میں جانا کتنے ہے، مرنا کتنے ہے، جو مرے گا وہی جائے گا، ہر کوئی مرنے والا نہیں جائے گا۔ ہاللیلویا۔ کلام مقدس کے اندر ایک بات جو پالوس رسول نے فلپیوں 1:21 میں کہی، فلپیوں 1:21 پالوس رسول کی چٹھی فلپیوں کے نام، اور یہ فلپیوں کے اندر جو پالوس رسول نے پیغام بھیجا ہے وہ پیغام یہ ہے کہ جینا میرے لیے مسیح اور مرنا نفع ہے۔ ہر بندہ آج کاروبار کیوں کر رہا ہے؟ نفع کے لیے، فائدے کے لیے، کہ اس کو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی روپے پیسے میں کاروبار میں نفع ہو۔ اگر 1000 سے 1000 کمانا ہے تو پھر تو کوئی نفع نہیں، اگر 1000 سے 5000 کمانا ہے تب نفع ہو۔ تو بائبل مقدس جو آج بیان کر رہی ہے، ذرا غور سے سنیے، گہری باتیں ہیں، بھاگنے والی باتیں نہیں ہیں، جوش والی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ بڑی سمجھنے والی باتیں ہیں، کیونکہ ہر ٹاپک پر جو ہوتا ہے ایک فاسٹ ٹاپک ہوتا ہے، اس پر فاسٹ کلام دیا جاتا ہے، جو سلو ہوتا ہے اس پر سلو دیا جاتا ہے، سلو پر ہم بھاگ نہیں سکتے۔ تو بات یہ ہے کہ پالوس رسول نے کہا کہ جینا میرے لیے مسیح اور مرنا نفع۔ پتہ ہے نفع کیوں ہے؟ بچے قابو کرو۔ مرنا نفع کیوں ہے؟ کیونکہ جینا مسیح ہے۔ ہاللیلویا۔ اپنی زندگیوں پر غور کرو، کیا تم مسیح میں جی رہے ہو؟ کیا تمہارا چلنا مسیح میں ہے؟ کیا تمہارا بولنا مسیح میں ہے؟ کیا تمہارا دیکھنا مسیح میں ہے؟ کیا تمہارا دل مسیح میں ہے؟ کیا تمہارے کان مسیح کے کلام پر لگے ہیں؟ کیا تمہاری آنکھیں مسیح پر لگی ہیں؟ کیا تمہاری سوچ، تمہارے خیالات، تمہاری باتیں، تمہارا دل، تمہارا دماغ، تمہاری ہر ایک بات کیا مسیح میں ہے؟ نفع ان کے لیے ہے جو مسیح میں مرتے ہیں، اور مکاشفہ کی کتاب بھی کہتی ہے مبارک وہ مردے ہیں مرتے ہیں جو مسیح میں مرتے ہیں، مردے ہیں جو مسیح میں مرتے ہیں۔ سب دنیا کے مرنے والے مبارک نہیں ہیں، اور سب دنیا کے مرنے والوں کے لیے نفع نہیں ہے۔ اب نفع کی بات آئے، اگر آپ مسیح میں جی رہے ہیں، اگر آپ مسیح میں چل رہے ہیں، اگر نیند آئے تو پلیز اس کو بگا دیجیے گا، زیادہ ٹائم نہیں لیں گے آپ کا۔ خدا نے سب سے زیادہ عظمت اپنے کلام کو دی ہے، تو ہم نے بھی پرستش ایک اپنا الگ ٹاپک ہے اور کلام ایک اپنا الگ ٹاپک ہے۔ کلام کی عظمت کے ساتھ ہم کسی کی بنائی شاعری کو نہیں ملا سکتے، ٹھیک ہے؟ تو سنیے، ایک پہلی بات جو میں آپ کو 4 باتیں سکھائیں گے نفع کی، ویسے تو ہزاروں نعمتیں ہیں لیکن جو خاص ہماری زندگی کے ساتھ جڑی ہیں۔ پہلی بات، پرفیکٹ باڈی، ایک بیٹر باڈی، ایک بہتر جسم، ایک بہتر بدن۔ تو میرے ساتھ نکالیے لوکا کی انجیل، اس کا 16 باب، اور اس کی ہم دیکھیں گے، آپ سارا چیپٹر جانتے ہو، 19۔ ایک دولت مند جو عیب روانی اور مہین کپڑے پہنتا اور ہر روز خوشی مناتا اور شان اور شوکت سے رہتا، اور لازر نام ایک غریب ناسوروں سے بھرا۔ سنیے، غور سے سنیے، ایک غریب، ایک امیر، ایک ناسوروں سے بھرا، ایک عیاشی سے بھرا، دونوں کی زندگیاں ہیں، دونوں کی زندگیاں ہیں۔ ایک کی زندگی میں نفع ہی نفع، ایک کی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک بیمار ہے، زخم ہے، آپ کو یہ سٹوری اچھی طرح پتہ ہے، آپ پڑھے لکھے ہو نا، سمجھدار، آپ کو سارا پتہ ہے کہ کیا ہے کیا نہیں لکھا ہوا۔ اب یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ایک غریب لازر نام، غریب ناسوروں سے۔ ناسور کیا ہوتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ ناسور وہ زخم ہوتے ہیں جو بگڑ جاتے ہیں اور کبھی ٹھیک نہیں ہوتے، اور جن کے اندر سے ریشہ، خون، پس بہتا رہتا ہے، اور اس کا گہراؤ کرتا رہتا ہے، اپنا زخم جسم میں گہراؤ
جس کو ہم عام زبان میں بولیں تو اس دنیا کی زبان میں بولیں تو اس کو کینسر کہتے ہیں. کینسر بھی لا علاج ہے، اب تو اس کا علاج بھی ہے، لیکن کسی زمانے میں وہ لا علاج ہوتا تھا، وہ ناسور تھا. اب یہاں پر یہ ناسور سے بھرا ہے اور اس کا زخم ہے، اس کے زخم میں بدبو ہے، اس کے زخم میں بو ہے، اسے کوئی نہیں پوچھتا، یہ بے حال ہے اور اس کا بدن اس طرح سے گل چکا ہے، سڑ چکا ہے کہ آوارہ کتے آ کر اس زخم سے اندر سے ریشہ اور پس کو چاٹ دے. اس کو چاٹتے ہیں، یہ لکھا ہے کلام میں لکھا ہے، اس کو چاٹتے ہیں، وہ اپنا پیٹ بھرتے ہیں اس کے زخم سے. تو کیا ہے کہ وہ مر جاتا ہے اور مرنے کے بعد وہ جو غریب ہے اس کے اندر عیاشی نہیں ہے، وہ کوئی غلط جگہ نہیں بیٹھا، وہ اپنے دکھ اور درد کے اندر صبر سے اپنی زندگی کو گزار رہا ہے. یہاں تک کہ جب کتے بھی آتے ہیں ان کو بھی منع نہیں کرتا، حالانکہ وہ کسی کے دروازے پر پڑا ہے کہ مجھے کوئی روٹی ملے گی، کوئی کھانا ملے گا، لیکن کتے آ کے اس کے زخم کو چاٹتے ہیں. آج میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے زخم دیکھے، اگر آپ ہاسپٹلوں میں جاؤ تو آپ جا کے دیکھو کہ کتنے زخم آپ کو نظر آئیں گے کہ آپ دیکھ نہیں سکو گے، برداشت نہیں کرو گے. ابھی پچھلے دنوں میں بیٹی روت کا زخم دیکھا، بھائی ہدایت کی بیٹی، تو اس کے اس طرح سے ہاتھ تھا، اس کو بھی کینسر تھا کہ زخم اس کا دیکھا نہیں جاتا تھا اور بندہ دیکھ کر ڈر جاتا. تو اسی طرح یہ بھی شخص جو غریب ناظر تھا، دکھ اور درد اور زخم اور خون اور پس سے بھرا پڑا تھا، اور آپ کو پتہ اسمیل بھی آتی ہے، بدبو بھی آتی ہے، لیکن میں نے بات کی ہے کہ جینا میرے لیے مسیح اور مرنا نفع. اور نفع کا مطلب ہے کہ یہ شخص وہ ہے جو اپنی زندگی کو بڑے صبر سے گزار رہا ہے. ایک اس کی جو جسم ہے، اس کی جو باڈی اچھی نہیں ہے، لیکن نفع جو ہے وہ جسم ہے جو مسیح میں ہے، وہ ہے ایک بہتر جسم، ایک بہتر باڈی، ایک بیٹر باڈی. تو یہاں پر کیا ہے کہ لکھا ہے کہ وہ مر گیا، وہ مر گیا، اور یہاں پر لکھا ہے کہ لازر غریب ناسوروں سے بھرا اس کے دروازے پر ڈالا گیا، اس کو آرزو تھی کہ کچھ کھائے، اور ایسا ہوا کہ وہ مر گیا اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا. اب دیکھیے وہ زخم والا جسم مرنے کے بعد اس کو ایک بہترین جسم مل گیا، ہاللیلویا، ایک پرفیکٹ باڈی مل گئی، ایک پرفیکٹ جسم مل گیا جس کے اندر اب لازر جو گود میں ہے، اس کا مطلب اس کا کوئی زخم نہیں ہے، اب وہ خدا کی بادشاہی میں ہے، اس کے لیے نفع ہے. دیکھیے آج اگر آپ کے جسم میں بواسیر ہے، کینسر ہے، بیماری ہے، شوگر ہے، بی پی ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ کتنی عجیب جسم ہے جو ہمیشہ بیمار ہے. آپ میں سے کوئی ایسا شخص کھڑا ہو کے بتائے جس کی پورا جسم، پوری باڈی جو پرفیکٹ ہے اور وہ کبھی بیمار نہیں ہوا، اس کو کبھی کچھ نہیں ہوا، اس کو کبھی تکلیف نہیں ہوئی، اسے کبھی پریشانی نہیں آئی، اس کا کبھی سر درد نہیں ہوا، اس کو کبھی شوگر نہیں، اس کو کبھی بی پی نہیں ہوا، اس کا کبھی پریشر ہائی نہیں ہوا. مجھے آپ میں سے کوئی ایسا شخص کھڑا ہو کے بتائے جس کے پاس ایک بیٹر باڈی ہے. کوئی بھی نہیں ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے. پریشانی آپ کے اندر تو ہے نا، اس باڈی کے اندر ہے، لیکن جو نفع کی باڈی مسیح میں ہے اس میں دنیا کا ذرہ بھی نہیں ہے، ذرہ بھی نہیں. اس کے اندر باڈی کے اندر کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی بی پی نہیں ہے. ایک پرفیکٹ باڈی آپ کو مسیح میں مرنے کے بعد نفع میں ملے گی. ہاللیلویا، جینا میرے مسیح اور مرنا نفع. ایک ایسی باڈی، اب جو لازر کا جسم ہے یہ بالکل پرفیکٹ ہے، یہ جسم بالکل پاک ہے، یہ جسم پر کوئی داغ نہیں، یہ جسم پر کوئی دھبا نہیں، یہ جسم پر کوئی بدبو نہیں، یہ ایک پاک جسم خدا کی گود میں پہنچا دیا گیا. جینا میرے لیے مسیح. اور یہاں پر ایک امیر بھی مرا ہے، امیر جو صاف ستھرا کپڑے پہنتا، پوشاکیں پہنتا، راجا مہاراجوں کی طرح رہتا، گلے میں مالا پہنتا، سر پہ تاج پہنتا، ہاتھ میں انگوٹھیاں پہنتا اور قیمتی پوشاک پہن کر ہزاروں نعمتیں کھاتا. اس کے کپڑے دھونے والے، اس کا جوتا پہنانے والے، اس کا ہر کام کرنے والے اس کے نوکر چاکر، اور یہ بھی مر گیا اور جہنم میں ڈال دیا. ہاللیلویا، جہنم میں. میں آپ کو ایک بات کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کی پرفیکٹ باڈی صرف
यीशु मसीह में हो सकती है और किसी में। और अगर आप मसीह का सिर्फ नाम रख के जी रहे हो तो गलत बात है, नफा कोई आपकी जिंदगी में। जैसे मैंने पहले कहा, मसीह में ही चलना, मसीह में ही बोलना, मसीह में ही देखना, मसीह में ही सुनना और अपने खैरात जो भी कुछ है मसीह में रखना, तब आपको एक परफेक्ट जिस्म मिलेगा, एक बदन मिलेगा। मेरे साथ निकालिए, बच्चों को जरा जिसकी मां नहीं है उसको भेज दे प्लीज, गौर किया करें, आगे पीछे देखा करें। हम पहला ग्रंथियों, देखिए मैं आपको समझाना चाहती हूँ, उसका 15 बाब और उसकी 40 आयत सुनिएगा गौर से। पहला ग्रंथियों 15:40, आसमानी भी जिस्म है, सुनिए, आसमानी भी जिस्म है, आसमानी जिस्म पर कोई बीमारी नहीं, आसमानी जिस्म के अंदर कोई शुगर नहीं, आसमानी जिस्म के अंदर कोई ब्लड प्रेशर नहीं, कोई कैंसर नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई सोच नहीं, कोई फिक्र नहीं। वो आपको नफे में मिलने वाला जिस्म है। यहां पर क्या लिखा है? आसमानी जिस्म है और जमीनी भी, मगर आसमानियों का जलाल और है और जमीनियों का और है। हालेलुया। जमीनी जलाल और है, जमीनी जिस्म और है और आसमानी जिस्म और है, जिसके लिए आपको मसीह में जीना और मसीह में ही मरना, तब आपको ये जिस्म मिलेगा, तब आपको ये बॉडी मिलेगी, वरना तो जहन्नम के दरवाजे हमारे लिए खुले हैं। इजी पर अपने आप को रखिए, नहीं मसीह में जीना चाहते तो। और वहां क्या है? वहां सिर्फ एक लो है, तपश है, आग है। और कभी कभी आप उस जहन्नम की आग को किसी ने आंखों से देखे? मरने के बाद क्या होगा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मरने के बाद जो आपको मिलने वाला है। नहीं देखा आपने कभी जहन्नम की आग को? कभी आपने टीवी में लावा फटते हुए नहीं देखा? तो वो जहन्नम की आग बाहर आती है, वो जहन्नम की आग है। वो जहन्नम का देखिए किस तरह से वो लावा पिघलता हुआ बाहर आता है। अब उसके अंदर इंसान क्या रहेगा बताइए आप? अगर मसीह में हमारा जीना नहीं है तो मरना नफा नहीं है, मरना जहन्नम हमारे लिए खुली पड़ी है। वहां सिर्फ लो है, वहां पानी नहीं है। यहां से आप सीखते हो कि उस बंदे ने पानी मांगा, मैं यहां तड़प रहा हूं, इसको भेज। जो मेरे दरवाजे में पड़ा रहता था, आके अपनी उंगली का सीधा तर करके मेरी जुबान को तर करे, वहां से हम पहचानते हैं। वहां पर एक कीड़ा है जो कभी मरता नहीं, और वहां पर मौत नहीं होती, सिर्फ इंसान तड़पता है और इसके सिवा कुछ नहीं। लेकिन नफा किसमें है? जो जिस्म जमीनी और आसमानी और है। आपको आसमानी जिस्म मिलेगा जब आपका मरना मसीह में होगा। हालेलुया। जीना भी मसीह में, मरना भी मसीह में। वैसे अगर आपने उसका रास्ता छोड़ दिया है तो जहन्नम का जो हकदार है वो आप हो चुके हैं। इसी का एक और चैप्टर पढ़ेंगे, इसी बात का 53 और 52, 52 और 53। और ये एक दम में और एक पल में पहला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में जी उठेंगे। हालेलुया। और मुर्दे गैर फानी हालत में जी उठेंगे और हम बदल जाएंगे। हालेलुया। हम बदल जाएंगे। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपकी सोच, आपकी फिक्र, आपकी दौड़, आपकी बातें, आपकी झूठ, आपकी नफरत, आपका गुस्सा, आपकी बीमारी, आपका पल पल में बिगड़ जाना और आपका पल पल में तोला और मासा हो जाना। जीते जी इंसान बहुत कुछ करता है। आप वो नहीं रहोगे, और जो मसीह में मरेंगे वो सब के सब बदल जाएंगे। हालेलुया। वो सब के सब बदल जाएंगे। फिर ना बीमारी होगी, ना मौत होगी, ना परेशानी होगी। फिर हजारों हजार साल हम बादशाह, एक परफेक्ट जिस्म के साथ, एक परफेक्ट बॉडी के साथ, एक बेटर बॉडी के साथ हम खुदा की बादशाही में सुकून करेंगे। हालेलुया। उसने अपनी बादशाही को नाम दिया है
किसका नाम दिया? हम एक और हवाला पढ़ेंगे इसी नहीं 6 पहला ग्रंथियों 6:18-19। पहला ग्रंथियों 6:18-19। सुनिए ये बड़ी अच्छी बात है। अभी क्या कर रहे हो अपने बदन के साथ? बदन के लिए क्या कमा रहे हो? सुनो, लिखा है हरामकारी से भागो। हरामकारी से, सुनिए, हरामकारी से भागो। ये क्या कर सकती है? हरामकारी से भागो। जितने गुनाह आदमी करता है वो बदन से बाहर है। झूठ बोल रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, किसी के लिए बुरा सोच रहे हो, या कोई हेरा फेरी कर रहे हो, हाँ, या कोई अप डाउन कर रहे हो, तो ये तो आपके बदन से बाहर है। इससे आपको बदन को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन सुनिए, हाँ, ये बदन से बाहर है, मगर हरामकार अपने बदन का भी गुनाहगार है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुदुस का मक़दस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है और वो तुम्हारा अपना नहीं है। जो काम आप करते हो वो बदन से बाहर है, वो बदन को बेदाग नहीं करते, लेकिन हरामकारी और हरामकार, इसका मतलब पता है आपको क्या है? कोई है बताने वाला? इसका मतलब है नाजायज काम जो बदन के साथ नहीं करने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नाजायज काम जो बदन से किए जाते हैं वो बदन का गुनहगार है। क्या तुम नहीं जानते कि जो तुम अपने बदन से हरामकारी करते हो, नाजायज काम अगर तुमने अपने बदन के साथ किए हैं तो तुम्हारे लिए कोई नफा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो इसको इजी ले लेते हैं और कभी कभी अनजाने में अपनी लाश में अपने बदन को गुनाहगार बना देते हैं। हम इंसान हैं, हमें ऐसा कोई दूध से धुला हुआ तो कोई नहीं है। हालेलुया। जो बदन से काम तुमने किए, तुमने अपने बदन को गुनाहगार बना लिया। लेकिन जो तुमने हरामकारी से भागो, जितने गुनाह तुम करते हो वो तुम्हारे बदन से बाहर है। कोई बात नहीं, अगर मुश्किल में झूठ बोल दिया, या किसी से गुस्से से बोल पड़े, या किसी से लड़ाई कर ली, या किसी को बुरा कह दिया, ओके कोई बात नहीं, ये बदन से बाहर है। लेकिन जो बदन के अंदर है वो नाजायज काम है जो बदन के साथ नहीं करने चाहिए। हालेलुया। आ रही समझ के नहीं? हालेलुया। क्या लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन खुदा का मक़दस है? क्या तुम खुदा के मक़दस से ज़िनाकारी करोगे? क्या तुम खुदा के मक़दस से नाजायज काम करोगे? और तुमने ये नाजायज काम अपने बदन के साथ किए तो याद रखो ये तुम्हारा अपना नहीं। तुम्हारा, आप कहते हो ना मेरा जिस्म, मेरी आंखें कितनी मोटी, कितनी छोटी, कितनी काली, कितनी गोरी, मेरा ये, मेरा वो। आपका नहीं है मेरे बहनों भाइयों, आपका कुछ भी नहीं है। ये इमानत दी हुई है खुदा ने, कदम नहीं लेनी है वापस। हाँ, छुड़ा लोगे तुम अपनी अमानत को, उसके हाथ से छुड़ा लोगे। जीना मेरे लिए मसीह और मरना नफा। आपको बोनस मिला हुआ है, अभी तक जी रहे हो, अभी तक जी रहे हो। नहीं तो आगे जो एक वक्त आएगा 40-45 साल का बंदा हो गया और 30 साल की उम्र में खुद होगा और अपने बच्चों की शादी भी वो कर देगा। जो वक्त आने वाला है बहुत बुरा, बहुत घटिया वक्त, लेकिन मसीहियों के लिए नहीं। हालेलुया। मसीहियों के लिए इस बात का फख्र भी ना करना मैं तो मसीह हूँ, मेरी अम्मी मसीह में, अबू मसीह नहीं। जीना मसीह में है तो फिर नफा है, वरना अगर जो तुमने काम कर दिए वो तुम्हारे बदन के लिए गुनाहगार है, क्योंकि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। तुम अपने नहीं हो, तुम कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदनों से, अपने बदनों से क्या करो? अपने बदनों से क्या करो? सब बोलो, अपने बदनों से क्या करो? खुदा का जलाल जाहिर करो। कोई गीत गाए, कोई प्रस्तुति करे, कोई कुछ कहने, बोलो कोई बात नहीं, खुदा तुम्हारा भला करे। सब्र से अपनी जिंदगी गुजारो जिस तरह इस बंदे ने, गरीब ने गुजारी। और क्या किया? सब्र किया। नहीं रोटी मिली कोई बात नहीं, दुख मिल गया कोई बात
नहीं, खड़े पे गाली नहीं दी, ऐ अमीर बंदे तू ये है तू वो है, तूने मुझे रोटी नहीं दी, तेरा खाना खराब हो जाएगा, तेरा ये हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा। वो चुपचाप उसी जगह मर गया और देखिए कि उसको एक नया जीवन और एक नया बदन मिल गया। हालेलुया। फोड़ों वाला नहीं, बीमारी वाला नहीं, शुगर वाला नहीं, बस रेशे वाला नहीं, एक नासूरों से भरा हुआ नहीं, बल्कि एक परफेक्ट जिस्म मिल गया, एक परफेक्ट बॉडी मिल गई, एक बेहतरीन जिस्म मिल गया। दूसरी बात, नफा, जीना मेरे लिए मसीह और मरना। दूसरी बात मेरे साथ चलिए, यूहन्ना की अंजील उसका 14 बाब और उसकी पहली आयत से देख लेंगे। एक बात मैं बताऊं आपको, जीना मेरे लिए मसीह, और अगर आप मसीह में मर गए हैं तो आपके लिए एक नया घर मिलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। एक नई बॉडी, बेहतर बॉडी, एक बेहतर घर, एक बेहतर हाउस आपको मिलने वाला है, एक बहुत प्यारा घर आपको मिलने वाला है। उस घर के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उस घर के लिए आपको सिर्फ इत्मीनान रखना होगा, घबराना नहीं उस दुनिया में रहकर। मेरे पास घर नहीं, मैं किराए पे हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। पता है, खुदा ने आपके लिए एक बहुत अच्छा घर बना रखा है। अगर आपका जीना और मरना, और अगर कहीं और है तो फिर आपके लिए वो घर नहीं है। एक कीमती सोसाइटी, एक कीमती जगह, एक बेहतरीन। मैंने पिछले दिनों में सैमी से पूछा, पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड के अंदर मुझे बताएं कि सबसे बेहतरीन सोसाइटी कहाँ है। तो सैमी फौरन बोला लॉस एंजलिस, जो जल गया आपके सामने, वो सबसे बेहतरीन कीमती। ऐसे ही बेटा, सबसे कीमती पूरी दुनिया में। तो मैंने कहा क्या बोला? लॉस एंजलिस। वो मैं कहा यीशु मसीह की बादशाही, हालेलुया, यीशु मसीह की बादशाही, एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसी जगह, एक ऐसा घर जो आप पूरी जिंदगी पैसा कमाए तब भी नहीं बना सकते। हालेलुया, ओह हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या हमें मिलेगा वो घर वहां पर? क्या वो जगह हम खरीद सकेंगे? बहुत सारे जल्द लोग कर रहे हैं, बड़ी बड़ी नेकियां कर रहे हैं, उत्थे साडा घर बन जाए, उस सोसाइटी दे विच साडा घर बन जाए। आप चाहते हैं कि आपकी अच्छी से अच्छी सोसाइटी में जगह हो। आपका जो माइंड बन जाता है ना, कभी कभी आप कहते हैं राना टोल पहुंच जाओ या बैरिया टोल पहुंच जाओ, इससे अलावा सुकून की जगह है। तो मैं आपको बताऊं, खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही के सिवा कोई जगह नहीं। हालेलुया, हालेलुया। कोई परफेक्ट नहीं, एक मुकम्मल और परफेक्ट घर मिलेगा आपको, एक बेटर हाउस मिलेगा आपको। कैसे मिलेगा? मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, लिखा है तुम्हारा दिल ना घबराए, किराया देते देते आए तुम परेशान हो। कौन है किराए पे? कोई बात नहीं, जीसस देखेगा आज आपको। एक दिन आपका अपना घर होगा, चाहे छोटा। हालेलुया, हालेलुया। जो कह दिया सो कह, हालेलुया। खुदा कहता है मेरा फादर मगर मुझसे बात निकालेगा ना, चाहे वो 500 साल बाद पूरी हो के रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। पर फादर मुझे से जी बताइए कौन कौन है आप में से किराए पे? कोई बात नहीं, समझ लीजिए आपको घर मिलने वाला है। हालेलुया। खुदावंद देख लेगा आज अपनी किताब। क्या लिखा है? तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। हालेलुया। जीना मेरे लिए मसीह और मरना नफा। मरने के बाद ये मकान मिलेगा, लेकिन जो मरना होगा, ये बात पहले याद रखनी है, ये पहले बात याद रखनी है कि मरना जीना मसीह में हो, इधर उधर ना हो दाएं बाएं। हालेलुया। अब क्या लिखा है? तुम्हारा दिल ना घबराए। मैं जानता हूं कि तुम घबरा चुके हो और तुम दुनिया के लाश से परेशान हो, लेकिन यहाँ पर लिखा है तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। हालेलुया। मैं जाता हूँ, इसलिए वो गया है ना, उसको पता है यहाँ पर आके रखना है, तो क्या करूँ? उनके लिए मेरे जाके जगह तैयार करूँ। वो एक अच्छी सोसाइटी आपके लिए बना रहा है, एक अच्छी जगह जहां पर कोई तकलीफ नहीं, दर्द नहीं, बीमारी नहीं, पस नहीं, रेशा नहीं, कोड़ा नहीं, भिनसी नहीं, दाग नहीं, धब्बे नहीं, एक परफेक्ट बॉडी के लिए और एक
अच्छे इंसान के लिए जो उसका है उसके लिए एक घर बना। और मैं बताऊं खुदा के पास जगह नहीं कम पड़ेगी। ये ना सोचना पता नहीं मैंने मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो बड़े बड़े पात्रियां दे देगा। पहली तो बात है वो एक जैसा होगा, कोई फर्क नहीं उसमें होगा, एक जैसी बनावट होगी, एक जैसे घर होगा, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। जो बादशाही में हमारे लिए जगह तैयार है। मैं आपको बता रही हूँ मरने के बाद फायदे हैं, जो नफे हैं। उसके बाद क्या होगा कि अगर पूरी दुनिया भी देखे, पूरी दुनिया तो खुदा में नहीं जाएगी। समझ आ रही मेरी बात? पूरी दुनिया तो बादशाही में नहीं जाएगी, क्योंकि पूरी दुनिया तो मसीह को नहीं मानती। मसीह के लोग भी मसीह को अच्छी तरह से नहीं मानते, उन्होंने भी आज अपने आप को दागदार किया हुआ है। तो जितने लोग जाएंगे, अगर पूरी दुनिया भी लगा ले, पूरी दुनिया पूरा वर्ल्ड लगा ले, तो खुदा की बादशाही में चला जाए तो वो भी कम है। हालेलुया। इतना घर है, इतनी वो जगह है, इतने वो मकान है कि पूरी दुनिया भी चली जाए तो कम नहीं पड़ेगी। हालांकि जाना तो चंद लोगों ने। हालेलुया। क्या लिखा है कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो तो मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में क्या लिखा है? मुझ पर भी ईमान रखो, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है। ना होते तो मैं तुमसे कह देता हूँ। खुदा का कलाम कहता है अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। हालेलुया। एक जिस्म आपके सामने रखा जाए और उस जिस्म को एक ऐसा जिस्म हो जिसके अंदर कभी कुछ हुआ ही ना हो। जैसे एक नवजात बच्चे का जिस्म होता है, तो आप लोगों को जो अंदर बीमारी वाला जिस्म होता है, बास लोगों का तो हर छोटी मोटी होती रहती है। अगर आपको कहा जाए कि ये आप अच्छे वाला जिस्म ले ले और ये बीमार फिक्रों वाला जिस्म छोड़ दे, तो आप क्या करें? बताइए। ताड़े से जिस्म छड़ना ही इतना मुश्किल तो दुनिया की में छोड़ोगे। हालेलुया। आप कहेंगे कि हम चाहते हैं कि हम ये साफ सुथरा पाक जिस्म ले लें। हालेलुया। तो समझ लीजिए वो आपको मसीह में मिलने वाला है, एक बेहतर घर जिसके लिए आपने ना खून बहाया, ना पसीना, ना मेहनत, ना रुपया लगेगा, ना पैसा, ना आपको मजदूरी करनी पड़ेगी, ना आपको ईंटें लगानी पड़ेगी, ना आपको। अभी आप बताइए जिसने अपना घर बनाया कितनी मेहनतें की हैं अपने घर के अंदर, जिन्हों को अपना घर बनाया कितनी मेहनतें की हैं, कैसे आपने इधर उधर ठग ठगा के, बुरा मत बनाइए, माफी मांग के, कितना आपने उठाया, बढ़ाया, चुकाया, लिया, दिया, झूठ बोला, सच बोला, घर बना लिया। हालेलुया। हालेलुया। फिर भी खुदा आपको माफ कर देगा अगर तुम्हारा जीना मसीह में होगा, तो फिर भी वो तुम्हें नफा देगा और आसमान पर बना बनाया घर तुम्हें देगा। कोई मेहनत नहीं, कोई मजदूरी नहीं, कोई पसीना नहीं, कोई आंसू नहीं, किसी को ठगा नहीं, किसी को दिया नहीं, किसी से दिया नहीं, फ्री में मिलेगा आपको यीशु मसीह का घर। लेकिन जीना मेरे लिए मसीह, मरना, मरने के बाद ये सब कुछ मिलेगा। पानी से सुन लेना, मेरा दिल करता है उठे ही मार जाऊं। हालेलुया। पढ़े वो कहते हैं मेरा दिल तो करता है कि मैं कूच करके खुदा के पास चला जाऊं, यीशु के पास चला जाऊं, क्योंकि उसको पता है ना, उसको समझ है कि नफा है दुनिया में जो हम कर रहे हैं, इससे ज्यादा कहीं नफा मसीह में है। सुनिए, दो बातें हुई। पहली बात मैंने क्या बताई? पहली बात क्या बताई? पहली बात मैंने बताई एक परफेक्ट बॉडी, एक परफेक्ट घर मिलेगा आपको। अब दूसरी बात जो आपको मिलने वाली है वो है एक अच्छा, एक परफेक्ट बैंक बैलेंस जो आसमान पर आपको मिलेगा। अगर आप जमीन पर अपना माल उजाड़ रहे हो तो गलत कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो। माल को उजाड़ो ना। आइए मेरे साथ मत्ती रसूल की अंजील, इसे मत्ती रसूल की अंजील और उसका 6 बाब और उसकी 19 आयत सुनिए। मत्ती 6:19। अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो, अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो, जहां कीड़ा और संग खराब करता है और जहां चोर नकब लगाता और चुराता है, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो,
ना कीड़ा खराब करता है, ना जंग, और ना वहां चोर नकब लगाते और चुराते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? हमें कहाँ पर अपना माल जमा करना है? एक परफेक्ट बैंक बैलेंस आपका होना चाहिए। मरने के बाद आप कहते हैं भाई, अब यहाँ पर आप सोच लेते हो जिन्हें मरना भी रखना है, ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਲੈਣ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ करना है? हाँ, आगे जाएंगे तो क्या करेंगे? ऐसे तो रोटी बच्चे ने पका ली थी, काम खत्म हो गया, उसके लिए आपने बैंक बैलेंस जमा कर दिया है। मेरा 2 लाख, मेरा 3 लाख, मेरा 4 लाख, मेरा 1.5 लाख का मेरी कुछ रकम रख छोड़ो, मेरा आखिरत है। आखिरत तो ये है भाई, यहाँ पर खुदा क्या कह रहा है कि अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना कर, बल्कि आसमान पर, क्योंकि जमीन पर चोर है। जिन्हें देर तक ਤੁਹਾਡੇ को माल है, ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ भी ਤੁਹਾਡੇ दुश्मन है। मैं लिख के देती हूँ, लेकिन खुदा कहता है कि नहीं, अपना खजाना आसमान पर जमा कर। आसमान पर कोई चोर नहीं है, कोई चुराने वाला नहीं है, कोई जेलस होने वाला नहीं है। और अगर हमने अपना खजाना, जो ये हमें मरने के बाद नफा मिलेगा, हालेलुया, ये हमें एक ऐसा खजाना मिलेगा जहां ना चोर है, ना जंग है, ना कीड़ा है, ना खराब होता है, और ना चोर वहां चुरा सकते हैं। यीशु मसीह की बादशाही में, यीशु मसीह की सोसाइटी में चोर नहीं आते। हालेलुया। ये जमीनी है जो कुछ भी है। अब इसका सुनिए, इसका दूसरा हिस्सा, हम याकूब के अंदर जाएंगे। याकूब, उसका याकूब का खत और उसका 5 भाग। याकूब का खत और उसका 5 भाग। ए दौलतमंदो, ए पैसा जोड़ने वालों, ए नाजायज नफा कमाने वालों, जरा सुनो। तुम अपनी मुसीबतों पर जो आने वाली हैं रो और वावला करो। तुम्हारा माल बिगड़ गया और तुम्हारी पोशाकों को कीड़ा खा गया, तुम्हारे सोने चांदी को जंग लग गया, और वो जंग तुम पर गवाही देगा और आग की तरह तुम्हारा गोश्त खाएगा। तुमने आखिर जमाना में खजाना जमा किया। हालेलुया। ए दौलतमंदों जरा सुनो, ए लालची लोगों जरा सुनो, ए पैसे को ही अपना रब बनाने वालों, ए पैसे को ही अपना खुदा बनाने वालों, ए पैसे को ही अपनी जिंदगी बनाने वालों, ए पैसे को ही अपनी शान और शौकत बनाने वालों, ए पैसे को ही अपनी मोहब्बत बनाने वालों, ए पैसे को ही अपनी तरक्की बनाने वालों, जरा सुनो। तुम्हारा माल बिगड़ गया, तुम्हारे माल को कीड़ा खाएगा, तुम्हारे पोशाकों को भी कीड़ा खाएगा, और तुम्हारा सोना चांदी को जंग लग जाएगा, और वही चीजें तुम्हारी आखिर में गवाही देंगी। हालेलुया। और वही चीजें तुम्हारी गवाही देंगी। क्यों गवाही देंगी? क्यों कीड़ा लग गया? क्यों चोर को उठा के ले गए? क्यों खराब हो गया? क्यों पोशाकों को कीड़ा खा गया? क्यों जंग लग गया? क्यों लग गया? इसका जवाब इसी के अंदर है। इसलिए कि तुमने आखिर जमाना में अपना माल जमा किया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये आखिरी जमाना है। चाहे जो मर्जी को छोड़ लो, जितना मर्जी कुछ बना लो, जितना मर्जी कुछ जमा कर लो, सब कुछ ऐसे छड़ जाना है। हालेलुया। सब कुछ खुदा कहता है ऐसे करो, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ अफसोस रोवो। खुदा कहता है रोवो, चीखा मारो, पिटो, मातम करो। ये साफ लिखा हुआ है। खुदा कहता है रोवो, चीखा मारो, मातम करो, क्योंकि तुमने आखिर जमाना में अपना खजाना जमा किया है, तुमने आसमान पर जमा नहीं किया। हालेलुया। और ये जंग लग जाएगा, ये खराब हो जाएगा। और याद रखिए, अगर आपने आसमान पर खजाना जमा किया है तो ये मत कहिए अब तो बहुत बड़े हो गए, हम 4 घर और ले लेंगे, 5 घर और ले लेंगे, 6 घर और बना लेंगे, 7 घर और ले लेंगे, अभी इसको ऐसे बनाएंगे, अभी इसको ऐसे कर देंगे, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। लूका 12 के अंदर आपने पढ़ा होगा दौलतमंद बेवकूफ दौलतमंद के बारे में कि क्या हुआ। खुदा ने कहा आज रात तू मर जाना है। खुदा ने कहा, खुदा ने कहा
खुदा ने कहा भाई क्या कह रहा है, कहता है मैंने ये जोड़ दिया, मैं वो जोड़ दिया, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैं ढा दूंगा, मेरी आने वाली नस्ल 5 पीढ़ियां 10 पीढ़ियां खाएंगी। तो खुदा कहता है तुझे अजरा की मर जाना। तो ये किसका होगा, ये किसका होगा जो तेरी जान ना बचा सके। हालेलुया। अपने लिए आसमान पर खजाना जमा कर और मरने के बाद तुम्हें नफा मिलेगा। हालेलुया। ये सब तुम्हारा हो जाएगा, खुदा का खजाना तुम्हारा हो जाएगा, खुदा की बादशाही तुम्हारी हो जाएगी। खुदा के वो जो दीवारें बनी पड़ी हैं संगे सुलेमानी की, जबरदस्त की, जबूरत की, फिरोजा की, ये सब आपकी हो जाएगी। हालेलुया। तब जब जीना मेरे लिए मसीह और मरना, लास्ट बात करेंगे, आखिरी बात करेंगे, आखिरी बात ये करेंगे, हम मुकाशफा में जाएंगे। देखिए मैंने आपको बताया एक परफेक्ट घर, एक परफेक्ट बॉडी, एक परफेक्ट बैंक बैलेंस और एक परफेक्ट फेलोशिप। हालेलुया। समझते हैं आप किसको कहा गया है? हाँ सुमेरा, किसको कहा गया है? ध्यान हो तो बताओ, सुनिए गौर से। एक अच्छी दोस्ती, हालेलुया, एक अच्छी रफाकत, रफाकत का भी होगा। सुनिए अम्मा, अकेले तो नहीं ना वो खुदा की बादशाही में भजे फिर करियो ना देखन करियो तो देखांगे ते जे नाल कोई साथी ना होया ते फिर फायदा है हो जी सैला। हालेलुया, हालेलुया। जीना मेरे लिए मसीह और मरना नफा। आपको नफा मिलने वाला है, आपको एक अच्छी परफेक्ट फेलोशिप मिलने वाली है, आपको एक अच्छी संगत मिलने वाली है, आपको एक अच्छी दोस्ती मिलने वाली है, एक आपको वफादार रफाकत मिलने वाली है। सुनिए मरने के बाद हमें क्या मिलने वाला है। तो आइए मुकाशफा 21 बाब की 3 आयत। फिर मैंने तख्त में से किसी को आवाज, बुलंद आवाज, बहुत लोग बुलंद आवाज तो डरते भी हैं, बुलंद आवाज से लोग बहुत डरते हैं। तो मैं क्या करूं, मैं मैक को जितना नीचे रखूं मेरी आवाज भी बुलंद हो जाए। अब सुनिए क्या लिखा है, और फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना, देख खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सकूनत करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। मरने के बाद जब आप मसीह में मरेंगे तो खुदावंद यीशु मसीह आपके साथ सकूनत करेगा, वो आपके दरमियान होगा। और लिखा है कि खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा। हालेलुया। मरने के बाद हमें एक अच्छी दोस्ती मिलने वाली है। कुछ सीधे जी भी दोस्त अच्छा था। लिखा है यूहन्ना 11:11 के अंदर, यूहन्ना 11:11 उसके अंदर लिखा है कि उसने कहा मेरा दोस्त मर गया है, मेरा दोस्त मर गया है, उसको जगाना है। याद रखिए जब आप इस दुनिया के लोग तो कहेंगे फलाना मर गया, वो ढींगला मर गया, लेकिन याद रखिए मसीह में आप नहीं मर सकते, मसीह में आप सो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मसीह में आप सोएंगे, गहरी नींद सो जाएंगे, हमेशा की नींद सो जाएंगे, पर आप मरेंगे नहीं। हालेलुया। इसलिए उसने कहा जो कोई मुझ पर ईमान लाए गोया वो मर भी जाए तो भी वो जिंदा है। और यहाँ पर क्या लिखा है, उसने कहा कि मेरा दोस्त मर गया, मेरा दोस्त यानी जीते जी उसने दोस्त बनाया। और पता किसको बनाया है? और किसको बनाया? आसान है, कोई ना मुश्किल नहीं। उसने अपना दोस्त बनाया पहला इब्राहिम, हालेलुया, दूसरा मूसा, फिर ये तीसरे पर बात आई है तो वो लाजर है। हालेलुया। वो दोस्त बनाता है। अब मसीह की दोस्ती तो देखिए, औरतों को भी बड़ा शौक होता है दोस्त बनाना। पता है वो अपनी सहेलियों को भी कहती है वो मेरी दोस्त है, वो मेरी दोस्त है। मैं कहती हूँ यीशु मसीह को दोस्त बना के देखो,
तुम कभी भी मरोगे नहीं। हालेलुया, तुम कभी भी मरोगे नहीं, हमेशा अक्षर आवाज सुनता रहोगे। और कहता है कि जो मर जाएंगे, मुझ में सो जाएंगे, वो क्या करेंगे कि वो सुकूनत, एक अच्छी फेलोशिप, एक अच्छी दोस्ती, एक अच्छी संगत आपकी और खुदा की। और जगह कौन सी होगी? खुदा का खैमा। और कौन कौन होगा? फरिश्ते होंगे, नबी रसूल होंगे। आप कभी एलिया को देखोगे, कभी मूसा को देखोगे, कभी यशवा को देखोगे, और आप उन बुजुर्गों को देखोगे। वो आपकी रफाकत होगी, आपकी संगति होगी, आपकी सकूनत गाह होगी, और खुदा खुद उस रफाकत में मौजूद होगा, और वो आपके दरमियान सकूनत करेगा, और वो आपको सारे आंसू पोंछ देगा। और उसके बाद ना मौत होगी, ना मातम, ना रोना, पहली चीजें सब चली जाएंगी और सब की सब नई हो जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। ये कब होगा? क्योंकि जीना मेरे लिए मसीह, एक परफेक्ट बॉडी, एक परफेक्ट घर, एक परफेक्ट बैंक बैलेंस, एक परफेक्ट फेलोशिप। दोस्त मत बनाओ दोस्त तुम्हें बिगाड़ने वाले हैं, तुम्हें उकसाने वाले हैं, तुम्हें हलाक करने वाले हैं। अपने यीशु मसीह को अपना दोस्त बनाओ। जब भी तुम बात करोगे वो तुम्हें जवाब देगा। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसी दोस्ती निभाएगा कि आखिर तक वो आपके साथ रहेगा। आमीन। अगर फिर वही बात करोगे, अगर आपने कोई हराम कारी के काम, देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस बात को गलत मत समझिए। हम चाहे थोड़े हैं या छोटे, जब तक हमारी जिंदगी है, हमारे पास दो भी बंदे होंगे तो हम ऐसी बात करेंगे। हालेलुया, सच्चाई को बयान करेंगे, क्योंकि हमने भी बचना है, हमने भी आगे जाके अपनी जगह त्याग को लेना है अपने हिस्से में। तो मेहरबानी, अगर कोई जिस्म से ऐसा काम कर चुके हो तो आज आपके लिए मौका है, क्योंकि ये आखिरी जमाना में हमें ऐसे काम नहीं करने। तो फिर खुदा क्या करेगा? वो खुद आपका हाथ पकड़कर, हालेलुया, वो खुद आपका हाथ पकड़कर आपको अपनी बादशाही में वेलकम करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो चलिए लास्ट में अपनी अकल के लिए हमें पढ़ना चाहिए। यहूदा का खत एक ही है, यहूदा का खत पहला बाब और उसकी 24 है। अब जो तुमको 24 है, अब जो तुमको ठोकर खाने से बचा सकता है, अब आज के दिन जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, आज के दिन से आगे दिन, सुनिएगा, अब जो तुम्हें ठोकर, तुम्हें गिरने से, तुम्हें ज़िनाकारी करने से, तुम्हें बदकारी करने से, तुम्हें हरामकारी करने से, और तुम्हें गंदे बुरे काम करने से, और तुम्हें बुत परस्ती करने से, तुम्हें गैर माबूदों के आगे जाने से जो रोक सकता है, सुनिए, अब जो तुमको ठोकर खाने से बचा सकता है, और अपने पुरजलाल में, हालेलुया, अपने पुरजलाल में, हजूर में कामल खुशी के साथ बेऐब करके खड़ा कर सकता है। वो खुदाए वाहिद जो हमारा मसीह है, जलाल, अजमत, संतलत, इख्तियार हमारे खुदा यीशु मसीह की है। हालेलुया। अब जो तुम्हें कामल करके, अब जो तुम्हें मुकम्मल साफ करके, अब जो तुम्हारी जिस्म और बॉडी को पाक करके, तुम्हारी अकल को पाक करके, तुम्हारे ख्यालात को पाक करके, तुम्हारे हालात को पाक करके अपने हुजूर पर जलाल खड़ा कर सकता है, वो खुदा यीशु मसीह। हालेलुया। अब जो तुम्हें घिरने से, ठोकर खाने से, उस गुनाह में जाने से और तुम्हारे बदन को पाक रखने से बचा सकता है, तो वो यीशु मसीह है। उसे कबूल कीजिए और कहिए, क्या ये चाहिए सारे नफे हैं कि नहीं? हो चला जाए मंडी जावांगे ते 4000 का बकरा लेकर 8000 का बेच के आवांगे, ए नफा चाहिए। ऐसा नफा हमें नहीं चाहिए। जो बदन के अंदर काम है उनको मत कीजिए, उससे बदन गुनाहगार होता है, वो हरामकारी नाजायज काम है। तो कहिए, जीना मेरे लिए मसीह और मरना नफा। जीना मेरे लिए मसीह और मरना नफा। और खुदावंद यीशु मसीह आपको अपने हुजूर खड़ा करेगा। आमीन, आमीन। आइए अपने सर को झुकाइए, आपको मुबारक कीजिए, दुआ करें। हालेलुया। ऐसे आसमानी खुदा, आज तेरे लोगों ने जो तेरे कलाम को सुना, सीखा, समझा, ऐ खुदा